اور ہم تیری ڈالیاں ہیں خدا، اپنے آپ کو ہمیں خدا تیرے ساتھ پیوست کرتے ہیں، اور خداوند خدا یہوہ پاک خدا ہمارا باغبان ہے جو ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کرے۔ ہاللیلویہ۔ اے زندہ بزرگ اور آسمانی خداوند لشکروں کے رب، میں اپنے آپ اور ساری جماعت کو خداوند تیرے مذبح پر لاتی ہوں، اور خداوند خدا ہم سب کا ہم متفق ہو کر تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں، تیری شریعت کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے خداوند۔ تیری شریعت کی باتیں اے خداوند خدا ہمیں کامل کرتی ہیں، کیونکہ تو کامل اور چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں کامل اس طرح تم بھی کامل ہو جاؤ، تاکہ میرے ساتھ چلال پاؤ۔ اے یسوع ناصری، ہم تیرے یسوع نام سے آج خدا ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے خدا ہم تیار ہے۔ اپنے قادم کو پاک مقبول کو چھو اور برکت دے، تاکہ جب وہ تیرے کلام کو سنائے تو میں خدا تیرے کلام کا وسیلہ سے بابرکت ٹھہرے، تیرا کلام ہمارے گھرانوں کے اندر تبدیلی کا باعث ٹھہرے، تیرا کلام ہمارے گھرانوں کے اندر خدا کثرت سے خدا برکت کا باعث ٹھہرے، تاکہ ہم تیرے کلام سے مغرور اور مسرور ہوں، اور نہ صرف یہ کلام ہمارے اندر بسا رہے بلکہ ہم دوسروں تک بھی تیرے کلام کو لے کر جانے کا وسیلہ بن جائے۔ مسیح یسوع کے کبھی اور قادر نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہم خدا کے قادم پاسٹر مقبول کو زوردار تالیوں میں اور خدا کے کلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام سے آج شام میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں، سلام کہتا ہوں۔ تو پچھلی دفعہ بھی میں نے جو کلام اس جگہ پر شیئر کیا برکتوں اور لعنتوں کے تعلق سے کہ کیا برکتیں اور لعنتیں ہماری زندگی کے اندر اثر کرتی ہیں یا نہیں، کیا یہ برکتیں جو خدا باپ نے ہمیں دی ہیں وہ کیسی ہیں، اور وہ لعنتیں جو ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے ہم پر آتی ہیں وہ کیا ہماری زندگی کے اندر مداخلت کرتی ہیں۔ تو آج شام میں آپ کے درمیان جو میرے کلام کا عنوان ہے، جو کلام آج شام میں سناؤں گا، اس میسج کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے خداوند کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کا غلط استعمال۔ آج شام جو میرے کلام کا عنوان ہے خداوند کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کا غلط استعمال۔ آئے آمین۔ آئے میرے ساتھ کلام خدا میں سے آج شام نکالے یشوع کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت آج رات میں آپ کے درمیان پڑھوں گا۔ بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ نکالے عہد عتیق میں سے یشوع کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ انہیں مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیزوں کو لو اور یوں اسرائیل کے خیمہ گاہ کو وہ لعنتی کر ڈالے اور اسے دکھ دو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر اس کی خاص برکت تو سب کہیں آمین۔ بائبل مقدس کے اندر آج شام جو میرے کلام کا عنوان، یہ بڑا اہم کلام ہے
अंदर रुख चेंज हो जाएगा, आसमान से आपके ऊपर बरकतें नाज़िल होंगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने बताया कि लानत जो होती है एक ऐसी लफ्ज को कहते हैं, एक ऐसी बात को बाइबल के अंदर बयान किया गया है। लानत यानी खुदा का आपसे जुदा हो जाना, बरकत का जुदा हो जाना, खुदा की प्रेजेंस का खत्म हो जाना, आपकी जिंदगी और आपका खानदान दुख के अंदर आ जाना, आपके खानदान के अंदर बीमारी का आ जाना, ये लानत है। और आज हम नए एक अंदाज से, एक नए पैटर्न से देखेंगे कि खुदा की मखसूस की हुई चीजों को अपने घर के अंदर रखने से आपके ऊपर लानत आ जाती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आज हम इसको बड़ी तफसील से देखेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर कलामे खुदा में से आज रात मैंने यशवा की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर खुदा के कलामे खुदा की रोशनी में पढ़ा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब मूसा की मौत हो गई, मूसा के बाद खुदा ने मूसा को कहा था कि देख ऐ मेरे खादम मूसा, मैं तुझे अपने पास बुलाने को हूं, लेकिन तेरे बाद अपनी जगह पर यशवा को मुकर्रर कर दे, क्योंकि यशवा मर्द खुदा मूसा के साथ साथ रहता था। और खुदा ने मूसा को कहा कि यशवा के ऊपर हाथ रख और उसे कह कि खौफ ना कर, डरना, बेदिल ना हो, देख मैं तेरे साथ हूं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही है यशवा मैं तेरे साथ रहूंगा। और कलामे खुदा के अंदर लिखा है कि मूसा मिस्र की गुलामी से निकालकर इस्राएल को लेकर आया, लेकिन यशवा खुदा का बंदा, यशवा खुदा का खादम, ये वो मर्दे खुदा है जिसने इस्राएल को कनान की सरजमीन में पहुंचाया। और खुदा ने यशवा को कहा, उठ मेरे लोगों को और मेरी कौम को लेकर कनान में पहुंच। जब यशवा अपने लोगों को इस्राएल को लेकर निकला तो कलामे खुदा के अंदर लिखा है, इससे पहले कि लोग अपने खेमों को उठाते, खेमे उठाकर चल रहे हैं और आगे एक बहुत बड़ा दरिया यरदन है। ये दरिया यरदन ये पानी से भरा हुआ है, पहाड़ों की बर्फ पिघली हुई है और ये दरिया का पानी की स्पीड बहुत तेज है, इसे कोई देखता तो वो डर जाता। खुदा ने यशवा को कहा कि बनी इस्राएल कौम को कहे कि 100 हाथ पीछे खड़े रहे और कहनों और लावियों को कहें और लावी क्या करे, अहद का संदूक अपने कंधों पर उठाकर दरिया यरदन के अंदर पांव रखे। ऐसे ही यशवा ने लावियों को हुक्म दिया, कहनों को कहा कि क्या करो, यरदन के अंदर अपने पांव रखो। ऐसे ही उन्होंने पांव रखे। इस्राएल के कहनों और लावियों ने दरिया यरदन के ऊपर उन्होंने पानी के अंदर अपने पांव रखे तो दरिया यरदन के 2 टुकड़े हो गए। और कलाम के अंदर लिखा है, यशवा ने बनी इस्राएल कौम को कहा, इस दरिया में से गुजरो। इस्राएल के लिए खुदा ने दरियाओं को सिखा दिया, मूसा के लिए समंदर के 2 टुकड़े किए और यशवा के लिए और कौम इस्राएल के लिए खुदा ने दरिया यरदन को जो है वो 2 टुकड़े कर दिया, ताकि वो उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर मैंने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को कनान की सरजमीन पे पहुंचाऊं।
लोग बड़े खुशी के साथ कनान तक जाने के लिए खड़े हैं और दरियाए यरदन के दो टुकड़े हो गए और इस्राएल खुदा की हम्द करती हुई और खुदा के नाम की बड़ाई करती हुई इस दरिया को उन्होंने अबूर किया। जैसे ही उन्होंने इस दरिया को अबूर किया तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है आगे यरू आ जाता है। यरू एक ऐसा शहर जहां पर बहुत से जो है वो बड़े बड़े कद आवर लोग जबार रहते थे और उस यरू की दीवार जो बहुत बड़ी थी, एक वक्त में 7 जो है 7 रथ एक वक्त में यरू की दीवार के ऊपर 7 रथ एक ही वक्त में दौड़ सकते थे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यरू की दीवार को इस्राएल के लिए इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था। तब खुदा ने यशवा से कलाम किया, पहले भी कलाम किया जब यरू में आए हैं, अब भी, और पहले दरिया यरदन के 2 टुकड़े होने से पहले भी खुदा ने कलाम किया। अब यशवा को खुदा ने कहा यशवा दरिया यरदन के अंदर तो और तरीका मैंने तुझे दिया, अब और ले इस यरू को तूने फतह करना है। तो पहले दिन यरू का एक चक्कर लगा, दूसरे दिन दूसरा। बनी इस्राएल इसी तरह दरिया यरदन के बाद यरू को फतह करने के लिए, यरू को फतह करने के लिए उन्होंने 7 चक्कर लगाए। यरू को फतह करने के लिए जैसे ही उन्होंने 7 चक्कर लगाए तो यरू की दीवार जो है थी गिर गई। दीवार गिरने से पहले खुदा ने इस्राएल के लोगों को और यरू की दीवार को गिरने से पहले इस्राएल को कहा था कि यरू के अंदर तुम्हें जो माल मिले, सोना मिले, चांदी मिले, जेवरात मिले, जानवर मिले, वो सब मेरे लिए मखसूस है। उनमें से कोई भी इस्राएल के लोग रखने ना पाए, ये सब कुछ मेरा होगा। लोगों ने कहा आमीन, ऐसा ही खुदा हम करेंगे। जब यरू को खुदा के फरिश्तों ने मिलियामेट कर दिया और इस्राएल के लोगों ने यरू को फतह कर लिया, उन लोगों को कत्ल कर दिया, बड़े बड़े जबार, बड़े बड़े लोग कत्ल किए गए और वहां पर सब कुछ इस्राएल के लोगों ने लूट लिया और सब कुछ सोना, चांदी, हीरे, जेवरात, हर चीज लोगों ने लाकर यशवा के कदमों में रख दी और कहने लगे ऐ यशवा, ये सब कुछ चीजें जो यरू के अंदर से हमें मिली है और हमें यरू को खुदा ने दिया है, ये सब कुछ रख ले। यशवा ने सब कुछ रख लिया और खुशी करने लगे। आगे आई का इलाका था, खुदा फतह पे फतह दे रहा है। मूसा के बाद यशवा को खुदा ने चुना और एक से दूसरी फतह, अब तीसरी फतह से पहले लोग चंद आए यशवा के पास और आकर कहने लगे ऐ मर्दे खुदा यशवा, आगे आई का इलाका है, आई के इलाके के अंदर थोड़े से लोग हैं, ये इलाके के अंदर तुझे पूरी फौज भेजने की जरूरत नहीं है। तू इस तरह कर, थोड़े से लोग भेज दे और उस इलाके को भी हम फतह कर लेंगे, क्योंकि खुदा, मूसा का खुदा और तेरा खुदा हमारे साथ है। यशवा ने कहा जाओ, ले जाओ और वहां पर जाकर क्या करो, क्लैप करें सब जोर से जरा। हालेलुया। खुदा के बंदा यशवा के पास लोग आए और कहने लगे कि यशवा
यशुआ ने कहा जाओ कुछ आर्मी में से, फौज में से चंद लोगों को ले जाओ और आई के इलाके को पता करके मुझे आकर खबर दो अच्छी। जब वहां पर गए, उन्होंने अपनी तलवारें और म्यान के अंदर रखी हुई है और वो पता करने के लिए आई के इलाके को जा रहे हैं इस्राएल की फौज। लेकिन आई के लोगों ने, उस इलाके के लोगों ने, बाइबल के अंदर लिखा है इस्राएलियों को बहुत मारा और 26 लोग इस्राएल के मारे गए। इस्राएल के बड़े बड़े सूरमाए, बड़े बड़े सूरमे, बड़े बड़े जंगजू लोग इस्राएल के अंदर आई के बॉर्डर के ऊपर मारे गए और इस्राएल डर कर भाग कर यशुआ के पास आए और यशुआ को कहने लगे कि तेरे लोग 26 मारे गए हैं। और यशुआ ने जब वो सुना तो कलाम के अंदर लिखा है उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और वो खुदा के हुजूर रोने लगा और वो खुदा के हुजूर चलाने लगा और उसने आसमान के खुदा की तरफ निगाह करके कहा, ऐ खुदावन, तूने तो मुझसे कहा था जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा, ये मेरे लोग क्यों मारे गए? यशुआ रोने लगा, इस्राएल के लोग मातम करने लगे क्योंकि इस्राएल के अंदर आज बहुत से सूरमा और बहुत से जंगी लोग शहादत नोश कर गए हैं। यशुआ रोने लगा, सुबह से लेकर शाम तक यशुआ खुदा के हुजूर रोने लगा। यशुआ ने खुदा को कहा, पहले हमें फतह पे फतह, पहले जब हम निकले हैं तो तूने दरिया यरदन के 2 टुकड़े कर दिए, फिर तूने यरीको गिरा दिया, यरीको हमारे हवाले कर दिया, एक बहुत बड़ा शहर। लेकिन ये थोड़े से लोग जिन्होंने हमें शिकस्त दे दी है। यशुआ सुबह से लेकर शाम तक खुदा के हुजूर रोता रहा। कलाम के अंदर लिखा है वो रोता रहा, यशुआ खुदा के हुजूर रोता रहा सुबह से लेकर शाम तक। और कलाम के अंदर लिखा है शाम हुई और खुदा यशुआ के पास आ खड़ा हुआ। उसने कहा, यशुआ उठ, यशुआ उठ। यशुआ उठा। खुदा ने कहा, यशुआ तेरे लोगों में से कोई एक है जिसने मेरी मखसूस की हुई चीजों की चोरी की और अपने घर के अंदर रखी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा की मखसूस की हुई चीजों को रखने वाला अपने घर के अंदर लानती है। ये शख्स यशुआ एकदम परेशान हो गया कि यरूशलेम के अंदर तो जितने भी लोग थे उन्होंने सब चीजें मेरे पास लाकर रख दी। ये कौन हो सकता है? जब पूरा डाला गया 12 कबीलों के दरमियान तो एक यहूदा के कबीले के नाम पूरा निकला और यहूदा के में से जब पूरा निकला तो एक शख्स पकड़ा गया जिसका नाम अकन था। क्या नाम था जी? अकन। अकन यशुआ के सामने जब आया तो यशुआ ने कहा, बता तूने क्या किया है? उसने कहा, मालिक मैं एक खानदान के अंदर गया और वहां पर एक सोने की ईंट और चंद नफीस कपड़े और चादर और एक सोने की प्लेट चादर मुझे मिली और मेरा दिल ललचाया और मैंने उन चीजों को लिया और वो खुदा की मखसूस की हुई चीजें थी और मैंने उनको लिया और अपने घर के अंदर जाकर छुपा दिया। खुदा की मखसूस की हुई चीजों को ये छुपाने वाले शख्स का नाम यहूदा के अंदर, यहूदा के कबीले में से इसका तल्लुक और इसका नाम अकन है। इस शख्स ने खुदा की मखसूस की हुई चीजों को, खुदा की मखसूस की हुई चीजों को अपने घर के अंदर छुपा लिया और लानत
نے خدا سے پوچھا ہے خداوند اس شخص کے ساتھ میں کیا کروں؟ خدا نے کہا اسے سنسار کر دیا جائے۔ یہ قانون آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر دیکھیں، آج بھی بہت سے ایماندار، آج بھی بہت سے خدا کے لوگ کلیسیاؤں کے اندر خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے گھر کے اندر چھپا لیتے ہیں، خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے گھر کے اندر رکھ کر اپنے خاندان کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر یہ لعنت لے آتے ہیں۔ عقل نے اب خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کو چھپا کر اپنے خاندان کے اوپر اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کے اوپر لعنت کو لے آیا۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں، آج بھی خاندانوں کے اندر اکن جیسے لوگ، اکن جیسی بیٹیاں گھروں کے اندر ہیں جو خدا کی چیزوں کو، خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کو کھا لیتے ہیں، 10واں حصہ کھا لیتے ہیں، ہدیے کھا لیتے ہیں، نذرانے کھا لیتے ہیں، خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے گھر کے اندر چھپا لیتے ہیں۔ اور یہاں تک مجھے پتا ہے میری زندگی کے اندر ایک ایسی بہن چرچ کے اندر 6 ٹائم پیس گھڑیاں لگی ہوئی تھیں، اس بہن نے ایک پاسٹر کو، اسی چرچ کے پاسٹر کو کہا پاسٹر صاحب میرے گھر کے اندر گھڑی نہیں، مجھے ایک گھڑی دے دیں۔ خدا کی مخصوص کی ہوئی چیز کو وہ مانگ رہی ہے، پاسٹر مجبور تھا نہ وہ کر نہیں سکتا، اس نے کہا بہن کھا لے اور لے لے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، وہ بہن نیچے سے اوپر سے نیچے چلی گئی، اس کا خاندان ڈسٹرب ہو گیا، اس کا خاندان پریشان ہو گیا۔ لیکن ایک دن جب اس نے دعا کروائی اور خدا نے ظاہر کیا کہ اس عورت نے میرے گھر کے اندر سے میری مخصوص کوئی چیز کو اپنے گھر کے اندر لے آئی۔ آج بھی بہت سے لوگ گھر کے اندر خادموں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب آج ہمیں جنریٹر چاہیے چرچ کا۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خدا کے گھر کی مخصوص کی ہوئی چیز ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا کے گھر کی مخصوص کی ہوئی چیز جو لوگوں نے دی ہے، وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر، بیاہ شادی کے اندر، گھروں کے اندر، کیکوں کے اندر، منگنیوں کے اندر خدا کی اس مخصوص کی ہوئی چیز جنریٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ برکت نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر یہ چیز لے کے جانے سے آپ کے گھر کے اندر برکت نہیں بلکہ لعنت آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے بچوں کی لائف کے اندر آ جاتی ہے۔ اور آج بہت سے لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں بھائی جی ہمیں ڈھولک نہیں مل رہی، ہم نے خدا کی ورشپ کرنی ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں لے جاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ ڈھولک صرف 2 گیت گائے جاتے ہیں، وہ ڈھولک خدا کے لوگوں نے چرچ میں دی، لیکن 2 گیت 3 گیت اس کے بعد اس خدا کی مخصوص کی ہوئی چیز کو، اس ڈھولک کو گانوں کے اوپر، ناچنے کے اوپر، رنگ برنگے گانے، اور اس سے وہ خدا کی مخصوص کی ہوئی چیز کو لے کر لعنت آپ کی گھروں کے اندر آ جاتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ عقل نے کیا کیا، ایک سونے کی اینٹ، ایک پتھرا اور نفیس چادر یہ لی اور اپنے گھر کے اندر آ کر چھپا دی۔ یہ خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزیں، آج لوگ ڈرتے نہیں خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کو بے دھڑک کھانے کے لیے کھڑے ہیں، چندہ کھانے کے لیے کھڑے ہیں، لوگ خدا کا ہدیہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے استعمال ہو، اور لوگ ان ہدیوں کو نظر کیے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے میں نے ایسے ایلڈروں کو دیکھا ہے چرچ کے ختم ہونے کے بعد ہی وہ پاسٹر صاحب کو کہتے ہیں ہم نے سپرائٹ بوتل پینی ہے، 7 بسکٹ کھانے ہیں، ساتھ ہی وہ کہہ دیتے ہیں والد صاحب کھانا بھی ہم نے کھانا ہے۔ پاسٹر صاحب مجبور ہوتا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ کہتا ہے لے آؤ، اور لوگ کیا کرتے ہیں خدا کی مخصوص کیے ہوئے ہدیے کو لیتے ہیں، اور ایلڈر کیا کرتے ہیں ان ہدیوں
निशानियों को खा, खुदा की मखसूस की हुई चीजों को खाया। और यशुआ को खुदा ने कहा इसे संसार कर दे, इसे इसके बच्चों समेत, क्योंकि ये इन मेरी मखसूस की हुई चीजों को इसने खा लिया। क्या किया जी? जोर से क्लैप करेंगे, समझ लगी। आमीन 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 आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें इन चीजों को बड़ी इख्तियार के साथ देखना है। और कलामे खुदा के अंदर एक और शख्स जिसे खुदा ने सरफराज किया, बाइबल के अंदर लिखा है कि पूरी जमीन, पूरा आसमान, पूरी परिंदे चरिंदे और समंदर की हर चीज खुदा ने उसके सुपुर्द कर दी, और उसका नाम नबूकदनेस्सर बादशाह था। उसने क्या किया? वो बड़ा जलाल में था। एक दिन उसने अपने महल के अंदर बड़ी लंबी ज़ियाफत थी। उस ज़ियाफत में पूरी दुनिया के लोग आए। पूरी दुनिया के लोग आकर जो है नबूकदनेस्सर बादशाह के फैमिली का जलाल देख रहे हैं। जब चंद दिन गुजरे तो नबूकदनेस्सर बादशाह ने अपने हाकिमों को बुलाया। उसने कहा जाओ, मेरे बाप ने जो बर्तन हैकल में से चुराए थे वो लेकर आओ। वो बर्तन सोने और चांदी के बर्तन। और नबूकदनेस्सर बादशाह और उसके लोग उस वक्त मैं पी रहे थे, शराब उसमें पी रहे थे। शराब वो पी रहे उन सोने के बर्तनों को जो सुलेमान ने खुदा की हैकल के अंदर खुदा के लिए मखसूस किए थे। वो बर्तन आज नबूकदनेस्सर बादशाह अपने महफिल के अंदर वो उन बर्तनों के अंदर मैं पी रहा है, उन बर्तनों के अंदर शराब पी रहा है, क्योंकि वो मखसूस की हुई चीजों को, खुदा की मखसूस की हुई चीजों को अपने महफिल के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। और आज भी बहुत से लोग अपने प्रोग्रामों के अंदर, अपने प्रोग्राम्स के अंदर खुदा की खाक की मखसूस की ही चीजों को इस्तेमाल करते हैं। महफिल के अंदर जहो जलाल दिखाते हैं, महफिल के अंदर चर्च का साउंड लेकर आते हैं, महफिल के अंदर चर्च का स्टेज लेकर आते हैं, महफिल के अंदर चर्च की दरियां लेकर आते हैं, महफिल के अंदर अपने घर के प्रोग्रामों के अंदर दरियां बिछा रहे हैं, घर के अंदर हर तरह की चीजें चर्च में से लेकर आ रहे हैं। यहां तक कि चर्च की प्लेटें जो है, गिलास जो है, लोग अपनी घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। खादमों के कहते हैं, खादम मना करें तो उन्हें कहते हैं आपको क्या, हम सब ने चंदा इकट्ठा करके दिया, लेकिन वो चीजें चर्च के अंदर मखसूस होती हैं, वो चर्च के कामों के लिए है, ना कि बाहर के लिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर हैकल के बर्तन आज नबूकदनेस्सर अपनी प्रोग्रामों के अंदर, अपने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसने उन बर्तनों के अंदर, पाक और मुकद्दस बर्तनों के अंदर क्या किया, अकल ने तो उस यशवा के दौर के अंदर ये जो यहूदा के कबीले से तल्लुक रखने वाला शख्स अखन, उसने तो सोना और चांदी और चीजों को छुपाया, नफीस कपड़ों को छुपाया। लेकिन यहाँ पर एक शख्स है, उसने क्या किया, अपने बाप के वक्त के जो बर्तन थे, खुदा के मखसूस किए हुए बर्तनों को क्या कर रहा है, लेकर आया महफिल के अंदर। और उनमें मैं भी, जैसे ही उसने मैं भी, आसमान के खुदा ने मुदाखलत की, आसमान के खुदा ने नबूकदनेस्सर से कलाम किया, और एक दीवार के ऊपर लिखा गया, एक हाथ आया और लिखा गया। जैसे ही वो हाथ आया, नबूकदनेस्सर बादशाह और उसके जो लोग थे थरथराने लगे। खुदा की मखसूस की हुई चीजों को अगर आज आप अपने घरों के अंदर, आप अपनी जिंदगियों के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे भाई आपकी जिंदगी के अंदर भी खुदा का हाथ आएगा।
लानत नबूकदनेस्सर के खानदान के अंदर आ गई। नबूकद बादशाह की सल्तनत जाती रही, नबूकदनेस्सर बादशाह की सारी हुकूमत जाती रही, क्योंकि लानत आज रात उसकी जिंदगी के अंदर आती है, क्योंकि उसने खुदा की मखसूस किए हुए बर्तनों का इस्तेमाल किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं मैं और आप तो नहीं ऐसे कि खुदा के घर की मखसूस की हुई चीज़ों को खाकर, खुदा की मखसूस की हुई चीज़ों को लेकर हमारे खानदान के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी फैमिलियों के ऊपर, हमारे खानदानों के ऊपर ये लानत ठहरी हुई है। लेकिन आज रात मेरी बहन, आज शाम मेरी बहन, ये खुदा कि मैं खत्म होते हुए तुझे आगाह करना चाहता हूँ, अगर ये गुनाह तेरी जिंदगी के अंदर साज़त हो गया है, ये लानत तेरे खानदान की जिंदगी के अंदर आकर स्टे कर गई है, तो आज रात ये मौका है कि ये लानत को मंसूख करने के लिए आसमान से एक बादशाह जिसका नाम यीशु है, वो मेरे और आपके लिए पैदा हुआ, वो मेरे और आपके लिए उसने यरूशलेम के अंदर जन्म लिया, एक छावनी के अंदर। उसका नाम इमानुएल है, और उसका नाम इमानुएल है, वो मेरे और आपके साथ है। जिसके साथ इमानुएल है उसकी जिंदगी के अंदर लानत नहीं। आज इस इमानुएल को अपनी जिंदगी के अंदर मान ले और कहे, ऐ खुदावन, मेरे बाप दादा की लानत, अगर उन्होंने कोई मखसूस की हुई चीजें, मेरे बाप दादा ने तेरा कोई गुनाह किया है, अगर उनकी लानत हमारे खानदान के अंदर है, मैं आज शाम मैं तेरे बेटे यीशु की सलीब के नीचे आता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी लानतों को खत्म करना किया है। वो मेरे और आपके लिए हकीरों मजदूर मर्द गमनाक रंज का आश्रय बन गया, वो मेरे और आपके लिए घायल किया गया, वो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया है, वो मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ है। वो बर्तन छुप यश अपना मुंह लेकर आया, वो बर्तनों को नबूकदनेस्सर बादशाह महफिल के अंदर लेकर आया ताकि वो जहां जलाल दिखाए। तो मेरा और आपका बादशाह यीशु, जिसने मेरा और आपका फिदिया दिया है, हर एक बर्तन जो इस वक्त मुझे देख रहा है, हर बर्तन, मेरी बहन, आप एक आला बर्तन हो, आप एक खुदा की मखसूस की हुई बर्तन हो। इन बर्तनों के अंदर खुदा ने जलाली कलाम रखा है, इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख। वो बर्तन नबूकदनेस्सर बादशाह ने मखसूस किए हुए बर्तनों के अंदर मैं पीकर खुदा को गुस्सा दिलाया। और आज भी बहुत से बर्तन हैं, आज भी बहुत से मुकद्दस लोग, कलीसिया के लोग, इन बर्तनों को, ये मैं और आप बर्तन हैं, पाक बर्तन हैं। बाइबल के अंदर पौलुस रसूल कहता है, तुम खुदा का मक़दस, तुम खुदा का मक़दस हो। जो कोई इस मक़दस को खराब करेगा, जो कोई इन बर्तन को खराब करेगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। आज भी बहुत से लोग इस बर्तन को खराब कर रहे हैं। कोई पान खा रहा है, कोई नस्वार खा रहा है, कोई बुराई कर रहा है। मेरी भाई, मेरी बहन, आपने इस बर्तन को, ये मक़दस के अंदर पाक मक़दस का फिदिया दिया है। मेरी इस मक़दस की लानत को यीशु ने सलीब पर उठाया, वो मेरे और आपके लिए घायल किया गया। अपने इन बर्तनों को खुदा के हुजूर देते। लानत इन बर्तनों के ऊपर नहीं आएगी, लानत उन बर्तनों के ऊपर है जिन्होंने आज भी मुंह के अंदर पान डाले हुए हैं, आज भी मुंह के अंदर नस्वार हैं। वो बर्तन तो खुदा के थे, वो बर्तन तो खुदा की बेटियां बेटे हैं, लेकिन क्या किया उन मुकद्दस बर्तनों को जिनकी कीमत अदा की गई है, जिनका फिदिया दिया गया है, लोगों ने क्या किया हुआ है? इन बर्तनों को बर्बाद कर दिया है, इन बर्तनों को खराब कर दिया है। लेकिन आज भी मेरे भाई, तेरे पास मौका है अपने इस बर्तन का, तेरा बर्तन जो अभी खराब हुआ है, इस बर्तन को ठीक कर ले, क्योंकि तेरा फिदिया दिया गया है। आसमान से खुदा ने तेरे लिए जान कुर्बान की है। इस बर्तनों को खुदा के हुजूर में अपने आप को संहार के हाथ में करते, जिसने मेरा और आपका फिदिया दिया। आप पाक हो जाए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिंदगी के अंदर नाकामी नहीं आएगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक खानदान और है, हननिया और सफीरा। उसने खुदा की मखसूस की हुई चीजों को रख लिया अपने घर की अलमारी के अंदर, कुल्हाड़ बेचा, मुकद्दसों से दुआ करवाई, पलूस और खादमों से, शागिर्दों से दुआ करवाई और कहा कि अगर मेरा ये प्लाट, मेरा
घर बिक जाए तो मैं खुदावंद इसका हिस्सा तुझे ला कर दूंगी। ऐसा ही हुआ, प्लॉट बिक गया, घर बिक गया और पतरस जो है चर्च के अंदर बैठा हुआ है और हननिया आया और आकर उसने हदिया दिया, हिस्सा दिया। पतरस ने उससे पूछा क्या यही है? उसने कहा हाँ। उसने खुदा की मखसूस की हुई चीजों को जो उसने मखसूस की थी वो हिस्सा ना लेकर आया, बल्कि घर के अंदर छुपा लिया, घर के अंदर उसने रख लिया। खुदा के खादम ने रूह में कहा तूने रूह कुदस, खुदा के रूह कुदस से क्यों झूठ बोला? उसी वक्त वो की गालत हुई और वो मर गई। उसकी बीवी आई, उसने भी ऐसा ही आंसर दिया और वो पूरा का पूरा खानदान खुदा की मखसूस की हुई चीजों को अपने घर के अंदर छुपाकर लानत उसके जिंदगी के अंदर आई, लानत उस खानदान के अंदर आई और तुम आज भी मुझे और आपको अपने घर के अंदर खुदा की मखसूस की हुई चीजों को, अगर आपने देख मानी है, अगर आपने खुदा के सामने कहा है कि खुदावंद मैं तेरे लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। आज बहुत से लोग मखसूस तो कर लेते हैं कि खुदावंद मेरा ये काम होगा, मेरी ये मन्नत पूरी होगी तो मैं तुझे दे दूंगी। हर लोग आज भी खुदा के हजूर ऐसी देके लेकर आते हैं जो चने, उबले हुए चने, कईयों के घरों के अंदर उबले हुए चने लेकर आते हैं। अब चार डाला होता है और ये खुदा के लिए हदिया और ये खुदा के लिए शुक्रगुजारी लेकर आए हैं। खुदा की मखसूस की हुई चीजों को, खुदा की मखसूस की हुई चीजों को लेकर आते हैं, निकम्मे हदिये, निकम्मी देंगे। और यहाँ तक अपने रिश्तेदारों को बुलाने के बाद, खिलाने के बाद, चंद लोगों को खिलाने के बाद पूरे का पूरा बड़ा देश का क्या करते हैं? खुदा की मखसूस की हुई हदिये में से भी पूरे बड़ा घर का सबसे बड़ा जो देश का होता है उसे पकड़ते हैं और उपलब्ध कर लेते हैं। ये सुबह खाएंगे, ये अगले दिन दोपहर खाएंगे और खुदा के मखसूस किए हुए देशों में से भी रखने वाले लोगों, आज इस कलाम को सुनने के बाद मेरी बहन गौर कर, खुदा की मखसूस की हुई चोरी करने वाले जहां पर बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं जिन्होंने देगों में से क्या किया है, देगों में से बहुत से चावल रख लेते हैं और खुदा को नकमी चीज देते हैं, हाफ चीज देते हैं। मेरी बेटी, मेरी बहन, घर के बड़े लोग तुझे चोरी करने पर खुदा की मखसूस की हुई चीजों को देग में से रखने के लिए क्या रहे हैं? तू खुदा की बेटी है। ऐ मेरी बहन, अगर तूने इससे पहले देग में से चावल निकालकर अपनी अलमारी के अंदर, अपनी फ्रिज के अंदर रखे हैं, इस कलाम को सुनने के बाद मेरी बहन इसी वक्त तौबा कर और कह, ऐ खुदावंद मैंने अकल की तरह तेरी मखसूस की हुई चीजों को छुपाया है। इससे पहले मैं नहीं जानती थी, आज मैंने तेरे खादम से ये कलाम सुना है। मैं आज से देश के अंदर से कोई देश का नहीं निकालूंगी, जो चीज होगी। आमीन, आमीन। तो इस तरह और लानत बरकत की बजाय उस शाम आपके घर के अंदर लानत आ जाती है। आप तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि लानत के वसीला से खुदा आपसे जुदा हो जाता है। आप खुदा की मखसूस की हुई चीजों को अपने घर के अंदर छुपाने के बाद आपके घर के अंदर बीमारी, मुश्किलात, दुख, ज़िद्दें आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपने खुदा की मखसूस की हुई चीजों की चोरी की है। आप भी अकन जैसे हैं, आप भी खुदा के पाक बर्तनों के अंदर क्या कर रहे हैं? गलत काम। आज देखिए आपके घर के अंदर बहुत से लोग हैं, पाक बर्तन है, आप इन बर्तनों के अंदर मैल भी जा रही है, इन बर्तनों के अंदर गलत काम हो रहे हैं। आए, मैं आज रात आपसे तमाश करता हूँ, अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करें, अपने आप को खुदा के लिए दे दें। मैंने आज कलाम सुनाया, कोई दरी चर्च से नहीं लेकर आएगा, कोई ढोलक चर्च से नहीं लेकर आएगा, कोई हारमोनियम चर्च से नहीं लेकर आएगा, कोई कुर्सी चर्च की नहीं लेकर आएगा, कोई दरिया चर्च की नहीं लेकर आएगा। अगर देग बनाई है तो उसमें से कोई भी अपने घर के अंदर सुबह के लिए देश का नहीं रखेगा। सब चीजें अगर खुदा के लिए मखसूस है तो उन्हें बांट दो, क्योंकि खुदा की मखसूस की हुई चीजों को
खाने वाले के घर के अंदर लानत है। और आज आप देखें, अगर आपने माजी के अंदर ऐसा किया हुआ है तो मेरी बहन मेरे भाई तौबा कर और कह, ऐ खुदा मुझसे भूल हो गई है, मैं तेरे बेटे यीशु की सलीब के नीचे आता हूँ, इन तेरी मखसूस की चीजों को मैंने खाया और मैं आज इकरार करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ऐ बाप, मैं तेरी सलीब के नीचे आता हूँ, क्योंकि सलीब के नीचे आने से ये लानतें मकूफ हो जाएगी। ये मखसूस की हुई चीजें खाने वालों के लिए वार्निंग है। अब इसे इकरार करें और कहें सलीब के नीचे आकर और कहें कि यीशु नासरी, मैं तेरी सलीब के नीचे आता हूँ, तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से मेरी सारी लानतें चली जाएं, मेरी सारी लानतें मेरे खानदान से चली जाएं, मेरे बच्चों से चली जाएं, मेरे खान की जिंदगी से चली जाएं, क्योंकि हमने तेरी मखसूस की हुई चीजों को खाकर गलती की और आज मैंने इस कलाम की कुदरत के वसीला से बरकत पाली। सब हैं आमीन आमीन। कदूस मेहरबान अज़ली अब्दी जलाली बाप, मैं तेरे बेटे यीशु अल मसीह नासरी के नाम से यहाँ पर खुदा इस कौम के लोगों के लिए, इस कलीसिया के लिए, तेरे खून खरीदों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ बाप, अगर इन लोगों ने तेरी मखसूस की हुई चीजों में से कुछ रख लिया, कुछ खा लिया, कुछ खुदावंद चोरी की, ऐ बाप, मैं तेरा खात्म होते हुए इन सबको तेरे बेटे यीशु की सलीब के नीचे लाता हूँ। ऐ बाप, तेरे मार खाने से, तेरे खून बहाने से हमारी लानतें खत्म हो गई हैं। तेरे खून बहाने से मेरी जिंदगी के अंदर सब लानतें खत्म हो गई हैं। इन लोगों की जिंदगियों के अंदर लानतें खत्म हो गई हैं। आज मैं तेरा खात्म होते हुए इन लोगों की रहाई की अपील करता हूँ। खुदावंद इन्हें डिलीवर कर दे, ऐ खुदावंद इन्हें बहाल कर दे। रूह कुदस पाक खुदा इनकी सारी लानतों को तेरे बेटे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, खत्म हो जाए। आज से ये बहाल हो जाए, आज से इनके खानदानों के अंदर से ये लानत मकूफ हो जाए और ये बरकत पाए और आसमान की औस और जमीन की फल भी तेरे बेटे यीशु के नाम से आज से इनकी जिंदगियों के अंदर बसे और तेरे नाम को ये जलाल दे। सारी इज्जत, सारी ऑनर मैं पाक भरे यीशु को देता हूँ, यीशु के नाम में आमीन। सब कहें आमीन आमीन, सब कहें आमीन।